सारे ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है, यस, होल ग्राफ एडेक्वेटली, और जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी एक्सप्लेन किया गया। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ दिस आंसर? हाउ वेल डज इट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द गाइडलाइंस? रीड द नेक्स्ट पेज फॉर अ टीचर्स कमेंट ऑन द आंसर शीट। टीचर जब इसको एवेल्युएट करता है तो वो क्या कहता है? The report structure is easy to follow and logical with a clear introduction, body and conclusion section. Clear introduction, body and conclusion section. The candidate used cohesive words to connect pieces of information and make the writing flow, such as until and before in the second sentence. The candidate used a variety of grammatical structures and vocabulary so that the writing is not repetitive. Okay. In terms of task requirement, the report is a little short, but this is because the simple graph used as an example does not have sufficient information for the candidate to describe. Okay, so in terms of guidelines, the teacher's comments are very positive. Okay, strategy for improving your IELTS score. So that we may discuss. So the structure of the report should be structured simply with an introduction, body and conclusion. Okay, tenses should be used appropriately. Introduction में क्या हो, अब हम हर एक इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं, and then हम शायद प्रैक्टिस भी करेंगे, and we would see introduction. Use 2 standard opening sentences to introduce your report. जब भी आप इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखेंगे तो उसके अंदर 2 सेंटेंसेस होने चाहिए. कितने सेंटेंसेस होने चाहिए? 2. These opening sentences should make up the first paragraph. और इन 2 सेंटेंसेस से पहला पैराग्राफ, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, बनता है. So the introduction paragraph carries 2 sentences. Sentence 1, highlighted one. Sentence 1 should define what the graph is about, that is, the date, location, what is being described in the graph, etc. Sentence 1 में क्या हुआ हमारे पास? What the graph is about, location, date, किस चीज को, वगैरह वगैरह. फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या है? The graph shows the number of cases of X disease in some land between 60s and 1995. इसमें सेंटेंस को भी देखें. The graph shows. The graph shows. ये नहीं है कि ये 1995 का डेटा है तो आप लिखिए the graph showed. भाई ग्राफ तो आप अभी लिख रहे हैं ना, ये नहीं कहते कि जी ग्राफ दिखा, showed. Notice the tense used. Okay, so notice that the sample opening sentence does not simply copy the words used on the graphic material. Copied sentences will not be assessed by the examiner, and so you waste your time including them. Okay, so जो ग्राफ के ऊपर कैप्शंस होते हैं या फिगर्स के ऊपर कैप्शंस होते हैं, try to avoid using exactly the same words. Okay, उसको अपने लैंग्वेज में आप यूज करें. नेक्स्ट जो सेंटेंस होता है इंट्रोडक्शन, that is sentence 2 and possibly 3. So sometimes we may have 2 or sometimes we may have 3 sentences in order to discuss the overall trend. इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि 2 सेंटेंसेस होते हैं. पहले सेंटेंस की तो हमने ऊपर बात कर दी. जो दूसरा सेंटेंस होता है या समटाइम 3 सेंटेंसेस होते हैं,
तो ये जो बाकी 2 सेंटेंसेस हैं या 3 सेंटेंसेस हैं, ये बेसिकली ओवरऑल ट्रेंड को ही डिस्कस करते हैं. दे डिस्क्राइब द ओवरऑल ट्रेंड. So the second sentence is about the overall trend. तो इंट्रोडक्शन में जो दूसरा सेंटेंस होता है ये आपको ओवरऑल ट्रेंड बताता है. इसमें इसमें एक सेंटेंस भी हो सकता है, 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं. ओके, सो दैट वी नीड टू डिस्कस over here in this case. Next is describing the graph in detail. अब इंट्रोडक्शन हमने लिख लिया, अब हमने क्या लिखना है? We have to describe the graph in detail. The body of the report will describe the graph or the graphs in detail. उसको हम बॉडी कहते हैं. जहां पर हम डिटेल एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ को, we call that is body. You will need to decide on the most clear and logical order to present the material. अब जब आप बॉडी एक्सप्लेन करें तो आपके पास एक ऑर्डर होना चाहिए. क्या आप ईयर वाइज जाना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल 1960 से शुरू करते हैं और 1995 पे खत्म करते हैं जैसे इस ग्राफ में था, या आप इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज जाना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप देखते हैं. So the next is the body of the report will describe the graph in detail. You will need to decide on most clear and logical order to present the material. Line graph generally present information in chronological order, and so the most logical order for you to write up the information. So probably earliest to latest by graph bar charts are organized in. अच्छा, जब हम बॉडी को एक्सप्लेन करें तो उसके अंदर 2-3 चीजें हैं. हमने ये देखना है कि हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है. पहले 60 को एक्सप्लेन करें, फिर 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80. ये माइंडसेट आपने बनाना है. या आपने जो पीक्स हैं पहले उनको एक्सप्लेन करना है, फिर जो बॉटम्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है, फिर जो लोएस्ट हैं उसको एक्सप्लेन करना है. जब पाई चार्ट्स होते हैं या बार ग्राफ्स होते हैं तो पाई चार्ट्स में जो हैवी एरियाज होते हैं, ज्यादा परसेंटेज एरियाज होते हैं, उनको हमने पहले एक्सप्लेन करना है और बाद में दूसरों को एक्सप्लेन करना है. ओके, सो बॉडी में आप पहले से मेंशन करें कि जी what order you are going to follow. You got the point. You need to know the sequence. क्या हम सीक्वेंस में चलना चाहते हैं 60 से 95 या 95 से 60, या आप पीक्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या मिनिमम को पहले एक्सप्लेन करना चाहते हैं और मैक्सिमम को बाद में एक्सप्लेन करना चाहते हैं. दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड. ओके, सो यहाँ पर जो उसका कंसर्न है कि जब हम बॉडी लिखते हैं, सो इन बॉडी you will need to decide on most clear and logical order to present the material. Line graphs generally present information in chronological order, and so the most logical order for you to write up the information would most probably from earliest to latest. जो सबसे बेस्ट कॉमन प्रैक्टिस है वो क्या है? अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. स्टार्ट से शुरू करते हैं और एंड पे खत्म करते हैं. Bar graphs, pie charts are organized in different ways, and so you need to decide on the organization of each one. Okay, so body में आप पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन करें, एक लॉजिकल ऑर्डर से एक्सप्लेन करें, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स हैं, इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, चाहे पीक्स पॉजिटिव हैं चाहे पीक्स नेगेटिव्स हैं, उनको आप एक्सप्लेन करें. And then we have a concluding section. Your report may end with 1 or 2 sentences which summarize your report to draw a relevant conclusion. फिर conclusion में हमारे पास 1 या 2 sentences होने चाहिए. कितने? 1 या 2 sentences होने चाहिए. So your report may end with 1 or 2 sentences.
तो कंक्लूजन सेक्शन में हमारे पास या एक सेंटेंसेस होना चाहिए या फिर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस होने चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। तो अगर हम इन टोटलिटी देखते हैं, क्या देखते हैं इन टोटलिटी, इंट्रोडक्शन में कितने सेंटेंसेस हों, मैक्सिमम 3, कम से कम 1, बेहतर होगा कि 2 सेंटेंसेस हों, या ज्यादा से ज्यादा कितने सेंटेंसेस होने चाहिए, 3 सेंटेंसेस होने चाहिए इन द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। बॉडी डिपेंड करता है कि ग्राफ कितना है, सो यू नीड टू एक्सप्लेन इन अ लॉजिकल ऑर्डर व्हाइल एक्सप्लेनिंग ईच ट्रेंड। इसमें 5, 6, 7 सेंटेंसेस या 10 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। कंक्लूजन सेक्शन में we have only 1 or at maximum 2 sentences. At maximum 2 sentences. So grammar and vocabulary, avoid repetition. कुछ चीजें you will receive higher marks if you are writing uses a range of structure and vocabulary correctly rather than a limited number. अगर आप हर दफा एक ही तरह का सेंटेंस बोलेंगे, वही वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपकी राइटअप के अंदर रेपिटेशन आएगी। राइटअप के अंदर क्या आएगी, रेपिटेशन आएगी। दैट वी नीड टू अवॉइड एंड यू विल लूज मार्क्स फॉर दैट। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्स डिजीज स्टार्टेड at 50 in 1965 and then went up to 200 in 1970 and then went up to 500 in 1980 and then went down to 0 in 1999. अब इसमें क्या आ रहा है, रिपीटिशन आ रहा है। रिपीटिशन कैसे आ रहा है, ये वेंट का अगर आप देखें, वेंट, वेंट अप, वेंट डाउन, सिमिलर स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। 50 in this, 60 in this, 500 in this, so a uniform structure। ये रिपीटिशन है, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलने, चाहे आप आइल्स के अंदर ट्राई कर रहे हैं या चाहे आप एग्जाम्स के अंदर ट्राई कर रहे हैं, ट्राई टू अवॉइड इट। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड।